Good morning, all of you. I hope audio and video both are working fine. Please confirm those who are online. Is everything okay from my side? Good morning, all of you. Good morning, Vijay Lakshmi. Good morning, Rajendra. I hope you people are fine. Everything is clear. Okay. Thank you for the confirmation. Volume भी देखिए ना ठीक अच्छी ना नहीं. Okay. Okay. Let's start. Today is 26 July and we'll discuss national and international news. Okay. So let's start. So the first news, removal of judge, continuously news from last, I think, 1.5 month. Citizenship Amendment Act, Indo-UK trade deal, judicial misconduct and accountability, national sports governance bill. Okay, and I would a bill. तो देखिए वैसे bill विषय चलो तो removal of judge. Lok Sabha to take up motion to remove High Court judge. Notices to remove Justice Burma have been submitted. Justice Burma the background में आप लोग कोई भी March 2025 रे तंकर क्वार्टर रू जो इलीगल मनी या करप्शन मनी सीज करा जाइथिला. सो एंड देन इंटरनल कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड इंक्वायरी अगेंस्ट द जस्टिस बर्मा and they found substantial evidence against that. So finally he was asked to resign, but he did not resign. Now the removal motion, or what you call the impeachment motion or removal motion, has been started against Justice Burma. So Rajya Sabha and Lok Sabha जो हमारा requirement अच्छी लोक सभा रे 100 MPs का signature and Rajya Sabha 50 MPs का signature. So in this monsoon session 145 Lok Sabha MPs have been signed in the motion, and in the Rajya Sabha 63 MPs have signed in the motion. So finally impeachment procedure of the motion has been started, and it has been started in the Lok Sabha, not in the Rajya Sabha. Okay. Why Rajya Sabha no hai, ya why only in Lok Sabha not in Rajya Sabha? Because in Rajya Sabha, although that motion was received by the ex-chairperson or the then vice president, but the motion was not initiated. So that was the reason. Since the chairperson seat is vacant, soon we'll get the new chairperson. So until that, this process is in halt. But in the meantime, Lok Sabha is a process टी चालू है, यानी कि जो आपनकर मोशन टी अच्छी impeachment motion, it will continue. So Speaker Om Birla is expected to constitute a 3-member inquiry committee soon, making formal initiation of the process. As we know, after the passing or initiation of this motion, another internal committee will be formed, or that committee is or consisting of 3 members. Amongst a 3-member committee, after the inquiry, submits its report to the respective houses, and if it found or it finds any such substantial evidence, then finally तार हाउसेस रे जो प्रोसेस गुड़िक अच्छी थ्रू द स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि आपनकर हाफ ऑफ द members are present and 2/3 members are present and voting. After that, it will submit it to the president for its final assent. So Rajya Sabha chairperson Jagdeep Dhankar had received the motion but did not formally admit it, leading the government to proceed via the Lok Sabha track. So it is gote catch अच्छी. Let me tell you, आपने जानी थी प्रोसेस होची. Once the impeachment motion will be initiated, it must be accepted by the respective chairpersons or speaker, let's say in Lok Sabha. यदि speaker या speaker of the Lok Sabha हो कि बा chairperson of the Rajya Sabha हो, if they do not accept it, then it will not be valid. So this is one catch. Although in Lok Sabha, the speaker has accepted it, internal committee has been formed. यदि राज्य सभा रे सेटा admit न करा जाए, यदि नुआ chairperson आसिला परे, so there is a possibility कि से जगह रे हमको ये motion टी reject हवारा chances अच्छी. So let's see what will happen in the Rajya Sabha as well. But there could be a possibility
जोटा हो पारे कारण ओम बिरला had accepted it, Lok Sabha accepted, sorry, but again key lies with the Rajya Sabha because both the houses must accept. Next, if you see the procedure, motion initiation requires 100 Lok Sabha MPs and 50 Rajya Sabha MPs. This is under the Judges Inquiry Act 1968. Okay, ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, so in prelims there could be a question कि କୋଉ provision ଟି constitution ରେ mention ଅଛି. The removal of judges has been mentioned in the constitution on the ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ जोटाकि आम कौच कि misbehavior, proved incapacity, etc. But the process exactly on what ground a judge would be impeached or removed from the post ये mention अच्छे आपनकर Judges Inquiry Act एटा को मन रखते हुए. This has been mentioned in the Judges Inquiry Act, okay, of 1968. Okay, admittance of speaker and chairman triggers formation of an inquiry committee, and से inquiry committee रे कोमन रहिबे, Supreme Court judge जने रहिबे, and High Court रे जने Chief Justice रहिबे, and a distinguished jurist जने थिबे से रहिबे. Okay, committee investigates and submits a report. So committee excuse me, so committee investigates and submits a report. Then parliament votes in both the houses. Okay, majority of total house membership and at least 2/3 of the members present and voting, जोटा कि हमें कोच special majority. So after that, president issues the final removal order if both the houses pass the motion. So it seems that in Lok Sabha it will pass, but in Rajya Sabha we'll see once the new chairperson will come. Next, Citizenship Amendment Act 185, Pakistan refugees get Indian citizenship under Citizenship Amendment Act. Let's see. On 25 July 2025, in Rajkot, Gujarat, a ceremony was held by the State Minister Harsh Sanghvi, where 185 non-Muslim refugees from Pakistan were officially granted Indian citizenship under the Citizenship Amendment Act 2019. These individuals who had fled due to religious persecution. What is the meaning of religious persecution? The meaning is against these people, religious persecution यानी कि violence on the basis of religion. Let's say non-Muslims in Pakistan, non-Muslims in Bangladesh, because Bangladesh, Afghanistan and Pakistan, these are the three countries and they are Islamic states, right? Their state religion is Islam. So non-Islamic state non-Islamic religion mane, so chances achi there could be a violence against the non-Muslims. Okay, तेणु केवल सेही मानक पाई यानी कि non-Muslim मानक पाई ये provision को रखा जाइए. And arrived in India before, this is the cut-off date. You can remember 31st December 2014 cut-off date. 31st December 2014 cut-off date. Received citizenship certificates in a government organized event across Kutch, Morbi and Rajkot districts. Okay. Slide actually mistake rahi hai. Okay. Under the CA framework, Section 6B of Indian Citizenship Act 1955, CA framework, Citizenship Act 1955, persecution survivors from Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian communities are eligible for expedited naturalization in India provided they arrived before 2014 deadline. ये लॉ टी केवे आसला ये आपनकर 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट थ्रू रे ही आसी 31 डिसेंबर 2014 को गोटे कट ऑफ डेट कंसीडर करा जाइछि. 2014 31 डिसेंबर पूर्व जेकोसी नॉन मुस्लिम हिंदू ही पारंती, सिख ही पारंती, बुद्धिस्ट ही पारंती, जैन ही पारंती, पारसी ही पारंती या क्रिश्चियन ही पारंती, नॉन हिंदू नॉन मुस्लिम. ओके, द सीए रिमेन्स पोलिटिकली पोलाराइजिंग. कहीं पोलिटिकली पोलाराइजिंग आम कहे ना जो सीए को इनिशिएट करागला इट वाज सिवियरली क्रिटिसाइज ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ताको कौन नल एंड वॉइड करनी. सुप्रीम कोर्ट ताको फाइनली अप्रूवल भी दे दी कारण पीएल फाइल तो होता. It was criticized that excluding Muslim refugees and raising constitutional question. आमे जेहेतु नॉन मुस्लिम्स बोली कहूचे दैट मीन्स आमे रिलीजियन बेस्ड रे कौन करूचे आमे एक तो
इक्वल अपॉर्चुनिटी को डिनाय करूचे, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन आम डिस्क्रिमिनेट करूचे, एंड सेक्युलर प्रिंसिपल को वायोलेट कहीं करूचे ना सिटीजनशिप आर गिवन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन बुझी कारण द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलरिज्म राइट आम जमी कहे सर्वधर्म समन्वय पॉजिटिव सेक्युलरिज्म विच इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बट अंडर द सीए रूल और लॉ आम कौन कहे केवल नॉन मुस्लिम एवं से कौ 3टा देश को आम टार्गेट करुचे बांग्लादेश द ईस्टर्न नेबरिंग स्टेट एंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान जोटा कि आम वेस्टर्न नेबरिंग स्टेट्स अच्छे एवं एठू जो माने मुस्लिम्स माने नुहे नॉन मुस्लिम्स तेणु से हिंदू भी हो पारती से सिख हो पारती से बुद्धिस्ट हो पारती से जैन हो पारती से पारसी हो पारती या क्रिश्चियन कम्युनिटी भी हो पारती से माने कौन करेंगे आमर से आम न्याचुरालाइजेशन या 14 पूर्वर से माने अराइव कर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अच्छी से माने रोचंदी इंडिया रे सो दे विल गिव द सिटीजनशिप ऑन द न्याचुरालाइजेशन ओके एंड आर्टिकल या अपन दी सिटीजनशिप लॉ पढ़ी थे आपंकर पॉलिटी रे तेणु बाय बर्थ गोटे सिटीजनशिप अच्छी आउ गोटे सिटीजनशिप प्रोसीजर अच्छी न्याचुरालाइजेशन तो ये हूँ से प्रोसेस ऑफ न्याचुरालाइजेशन ओके कि जदि गोटे आप देखिए जेहेतु से इंडिया रे रही आसुचंदी 14 ऑनवर्ड्स 14 पूर्व जो मैंने आसते से कथा ये पड़ी 14 ऑनवर्ड्स तेज से न्याचुरालाइजेशन सिटीजनशिप दिखाई अच्छा या पर आप कहीपर सर 14 पर जो मैंने आसुचंदी से दिजाव ना ओबियसली गवर्नमेंट विल कंसीडर और गवर्नमेंट रादर विल रिकनसीडर और पुणी थे फर्दर से गोटे आमेंडमेंट आणिकी करेंगे किंतु बर्तमान फॉर द टाइमिंग जेहेतु यहाँ 2019 रे आसीला तेणु कट ऑफ डेट को रखा जाइए 2014 हिसाब से नेक्स्ट को जी इंडो यूके जो ट्रेड डील आमर अच्छी इंडो यूके डील शिफ्ट फ्रॉम प्रोटेक्शनिज्म टू ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन इट्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन आम काली भी डिस्कस करते कहीं ना इंडिया इज हैविंग ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ ए डेवलप्ड कंट्री 2004-5 रे जितेबाला इनफैक्ट इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जितेबाला होता सिविल न्यूक्लियर डील ड्यूरिंग द UPA 1 गवर्नमेंट इंडिया इज ए न्यूक्लियर स्टेट आप जानते न्यूक्लियर वेपन आम पाखे अच्छी सिंस इंडिया इज ए न्यूक्लियर स्टेट देर आर मेनी सच डेवलप्ड कंट्रीज जो माने कि दे आर रिलक्टेंट टू साइन ए सिविल न्यूक्लियर डील सिविल न्यूक्लियर डील कौन ना आम न्यूक्लियर डील करवा अन्य देश मान सहित इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल कौन ना न्यूक्लियर को आम सिविलियन पर्पस रे यूज करें दैट इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज रे यूज करने बट नॉट इन द वेपन डेवलपमेंट और एनी सच डिफेंस मेकानिज्म या डिफेंस डेवलपमेंट नुहे सो दिस इज द सिविल न्यूक्लियर डील एंड US सहित वी साइंड इट इन 2004-5 आम सेकेंड टाइम केवे जो पोखरान रे टेस्ट करते न्यूक्लियर वेपन 1999 जो वाजपेयी थे एंड वाजपेयी कन्विंस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड और अक्रॉस द कंट्रीज दैट इट इज ओनली फॉर द सेल्फ डिफेंस नॉट फॉर द ऑफेंसिव एनी अगेंस्ट एनी सच कंट्रीज तेणु ता रिफ्लेक्शन आम देखीचे व्हेन द मनमोहन सिंह वाज देयर एंड सिविल न्यूक्लियर डील साइन होता एंड वंस इंडिया साइंड विद द सिविल न्यूक्लियर डील विद द US तार इम्प्लिकेशन कौन था लार्जर इम्प्लिकेशन जदि US सिविल न्यूक्लियर डील साइन करुच्ची इट्स आई मीन बाकी जो डेवलप कंट्रीज मैंने अच्छा से कौन सी रिलक्टेंस देयर इज नो डाउट ऑन इंडिया कि से ये हेल्प को नहीं कि तार डिफेंस डेवलपमेंट कर तेणु ग्रेजुअली आम देखीचे जापान ऑल्सो शोज द इंटरेस्ट जापान तापर सिविल न्यूक्लियर डील साइन कर ऑस्ट्रेलिया भी तापर इंटरेस्ट देखी सो US सहित जदि आमर डील साइन है सच ए डेवलप कंट्री एंड इन्फ्लुएंशियल जोटा आम हेजिमोनिक पावर बोली कहवा बाकी कंट्रीज गुड़ तापर इंडिया उपर डाउट कले ना कि इंडिया कुड यूज दिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन द पर्पस ऑफ डिफेंस डेवलपमेंट एठी भी यार भी इम्प्लिकेशन से टाइप UK सिंस UK is another major country in the western bloc and among the developed countries खास करके northern hemisphere जो अच्छी this shows that India is ready to accept any such negotiation with respect to
द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आम बर्तमान ऑस्ट्रेलिया सहित भी एक्सप्लोर करवा कारण ऑस्ट्रेलिया सहित भी आमर चली यूरोपियन यूनियन इज अनदर सच एग्जाम्पल कारण ये इट्स ए काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स सहित भी चली लगातार नेगोशिएशन सो ये जो पर्टिकुलर न्यूज जो डिस्कस आम करुचे सो से कहूँ दिस कुड बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर सच डेवलप कंट्रीज they can have the similar kind of free trade agreement with India. So India agreed to reduce auto tariffs from 100% to 10%. तेणु से देखो कौन कौच जो टर्म टी यूज करा जाइए फ्रॉम द प्रोटेक्शनिज्म मीन्स व्हाट हाई रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड हाई अमाउंट ऑफ टैरिफ ऑन द ट्रेड सो प्रोटेक्शनिज्म टू ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन यानी कि लिबरलाइजेशन मीन्स रिलैक्सेशन ओके लिबरलाइजेशन मीन्स रिडक्शन ऑफ टैरिफ इन ए ग्रेजुअल मैनर सो दिस इज व्हाट द essence of this particular news कि protectionism ru we are moving towards the gradual liberalization. That means 100% tariff good time rethila now it's the 10% over the 15 years time period under a quota based approach. What is the quota based approach? I have already explained to you कहithile abang jemti tariff and quota. Tariff is one restriction, quota is also another restriction in terms of trade, but tariff when we manipulate the price yani ki we change in price we put a kind of duty on the price of a product, but quota hoji quantitative restriction, right? A move signaling flexibility while protecting the domestic industries. आमे जेहेतु ग्रेजुअल आमे सेमती नहीं कि आज साइन है काली टू 100% टैरिफ फ्री वी हैव टेकन द टाइम नेक्स्ट 10 years भितर आमे एतिक रिड्यूस करूँ फर्दर आमे एतिक रिड्यूस करूँ सो विद इन दैट टाइम इंडियन इंडस्ट्री जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज गुड़िक अच्छी या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज गुड़िक अच्छी दे विल गेट एनफ टाइम टू ग्रो देमसेल्फ राइट से कहुच्छी while protecting domestic industry. So it's a kind of win-win situation. एमती नुहे कि आमे सडनली जमती आप देखिए ये आम आगु को मुझे देखिए ये हाँ ये देखो The FTA demonstrates a balanced strategy, opening markets gradually while safeguarding sensitive sectors like agriculture and dairy sector. Agriculture dairy sector रे आमे एंटर करूँ नहीं या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रे आमे ताकू नहीं कि जाऊँ कहीं ना एग्रीकल्चर सेक्टर रे आमे जानूँ प्राइमरी सेक्टर and almost 50%, 45 to 50% of Indian population are depending on it. 85% farmers are small and marginal. They do not have surplus. तेणु इस जो केस टी अच्छी आम कंट्री रे सो वी नीड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. सिमिलरली अपन डेरी सेक्टर को भी देखिए डेरी सेक्टर इज अनदर सच सेक्टर सेंसिटिव सेक्टर अपन कहींपर जोटा कि आमको प्रोटेक्ट करने को पड़ो द इंटरेस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेरी सेक्टर वुमेन आर इन्वॉल्व इन इट स्मॉल फार्मर्स आर इन्वॉल्व इन इट तेणु से जगह भी आम कॉम्प्रोमाइज करूने. ओके The deal is among India's most comprehensive integrating chapter on social security, digital trade, public procurement and labor environment norms. Okay. It projects New Delhi's evolving approach towards high standard, diversified engagement, opening doors for future deals with the European Union, US and other economies. तो obviously देखो डिप्लोमेसी जो हमारा था ना डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल ट्रेड था इंटरनेशनल ट्रेड या डिप्लोमेसी सबुठू फंडामेंटल जिनस होची जदि आपणकर ट्रेड बेटर अच्छी गोटे कंट्री सहित देन पीपल टू पीपल कंटाक्ट आपणकर हो पार एंड पीपल टू पीपल कंटाक्ट ऑल्सो कौन एक्सिलरेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज. तेणु जिते आप ट्रेड गोटे कंट्री सहित करेंगे जमी चाइना सहित वी आर हैविंग ए गुड अमाउंट ऑफ ट्रेड बट सेठी आमर टोटाली उल्टा ही चली एनिमिटी एनिमेसिटी चली. बर्तमान आप देखिए डोकलाम स्टैंडअप पर बर्तमान आम डिप्लोमेटिकली ग्रेजुअली से आहरी रिलेशन को इम्प्रूव करार अच्छे. टूरिस्ट वीसा आमको टोटाली अलाउ करा जाऊ नथिला नीदर फ्रॉम द चाइना साइड नॉर फ्रॉम इंडिया साइड. नाउ दे हैव अगेन स्टार्टेड एंगेजमेंट विथ ईच अदर. तेणु जो रिलेशन अच्छी ये ट्रेड ऊपर भी बहुत गुड़ा डिपेंड कर people will involve in the trade जोटा आम कहूँ. It projects New Delhi's evolving approach and New Delhi is also now flexible to accept any such challenges at the global level. जमती मुझे आपको काली कहूली कि US सहित we are unpredictable, right? Yes, agriculture and dairy sector both the sectors are sensitive one.
So we need to very cautious about that. We cannot open these two because इंडिया यूएस सहित जो आम ट्रेड डील चली तार मेन जो सिग्निफिकेंट सेक्टर हूँ डेरी सेक्टर को से टार्गेट कर यूएस इज आस्किंग टू गिव द फ्री मार्केट एक्सेस इंडियाज डेरी सेक्टर बट इंडिया इज रिलक्टेंट टू गिव एक्सेस कहीं ना इंडिया रे डेरी सेक्टर ऑल्दो वी आर परफॉर्मिंग वेल बट डेरी सेक्टर काफ़ी सेंसिटिव स्मॉल फार्मर्स एंगेज अच्छा cooperative sectors are engaging in that, women are involved or women are engaged in that, so we cannot give access to the dairy sector to US and US ro काफ़ी developed dairy sector and they can flood those products in the Indian market. Anyway, UK has agreed to provide India duty free access to 99% of its tariff lines. It has been more conservative when it comes to the movement of professionals in the sense आप देखिए आईटी प्रोफेशनल हूँ या एनी सच जमी देखिए गोटे टार्गेट रखा जाइए कि एनुअली से मैंने 1800 वीजा यहाँ हूँ इन टर्म्स ऑफ कोटा रेस्ट्रिक्शन ओके सो 1800 वीजा ही से माने इशू करेंगे इंडियंस प्रोफेशनल मानक से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ योगा इंस्ट्रक्टर हूँ क्लासिकल डांसर म्यूजिशियन हूँ ओके दैट इज ओनली 1800 ऊपर को आउ जापर ना द एग्रीमेंट फॉल्स सॉर्ट ऑफ मेकिंग कमिटमेंट्स एंड ब्रॉडर वीजा कैटेगरीज सच एज बिजनेस विजिटर्स एंड आईटी प्रोफेशनल्स ओके तेणु जेहेतु यूके सहित आमर काफ़ी भल रिलेशन देर आर पीपल दोज हैव सेटल्ड इन द यूके तेणु से केस रे आमको आउ टिके नेगोशिएट करने को पड़ो बिजनेस विजिटर एंड आईटी प्रोफेशनल केस रे राजेंद्र ओबियसली आम बेटर आम राजेंद्र आमको देखो सर्विस सेक्टर जदि आप देखिए खास करके सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो कि एनी सा सर्विसेज आप देखिए सर्विसेज सेक्टर इंडिया रे काफ़ी भल ग्रो करुच्ची सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूशन जीडीपी इज अराउंड 55% इंडिया रे खास करके एंड इंडिया जो सर्विस मार्केट अच्छी दैट इज़ वेरी लिमिटेड ओके सर्विसेज सेक्टर या सर्विसेज डिमांड मोर इन द डेवलप्ड कंट्रीज यूएस हो यूके हो अदर वेस्टर्न कंट्रीज तेणु आम सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट को आहरी बढ़ावा को पड़ो सो वी नीड अदर मार्केट एज वेल मुझे जमी कहली आपको चाइना ओबियसली बेसिकली चाइना से तो आमर ट्रेड डेफिशिएट अच्छी दैट मीन्स वी आर इम्पोर्टिंग मोर गुड्स फ्रॉम चाइना दैन China imports from India. We are dependent on China. This is one part. Second part, US जमती मु कहली अपन को कि आप rely करि परिबे नहीं due to unpredictability. For example, this tariff threat and trade restriction threat. So we need alternative. से alternative भीतर हम UK को find out करूचा जे FTA sign करिकी. And FTA जो हमारा करा जाइए तो obviously सर्विस सेक्टर जोटा अच्छी हमको प्रोटेक्ट करवा दरकार नहीं. Do not need to protect the service sector. आम सर्विस सेक्टर रे जते जदि एक्सपोर्ट आम करिपरिबा एटा बेटर फॉर इंडिया कारण इंडिया चाहूँची वी नीड अल्टरनेटिव मार्केट्स फॉर आवर सर्विसेज सर्विस सेक्टर वी आर परफॉर्मिंग वेरी वेल जदि इंडिया कॉन्टेक्स्ट रो आपण देखिए सो वी नीड अल्टरनेटिव मार्केट्स डाइवर्सिफाई मार्केट्स पुअर कंट्रीज गुड़िक लेट्स से अफ्रिकन कंट्रीज आप देखिए अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज दे विल इम्पोर्ट मोर गुड्स बट सर्विसेज सेक्टर से मैंने अफोर्ड करेंगे ना दे डू नॉट वांट एडवांस सर्विसेज बिकॉज दर इकोनॉमी इटसेल्फ इज पुअर एंड बैकवर्ड सो एडवांस सर्विसेज दे आर रिक्वायर्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज मोस्टली सो वी नीड टू एक्सप्लोर दैट ऑप्शन एज वेल एंड यूके इज गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी टू इंडिया ओके फाइन सो देखो जेकोसी जगह नेगोशिएशन हो एफटीए हो एनी सच ट्रेड नेगोशिएशन आम यूएस सहित कहीं डिले हो बिकॉज वी कैन नॉट कंप्रोमाइज आवर व्हाट वी कॉल national interest. We need to protect our people. We need to protect our indigenous industries. We need to protect our जो आपंकर इनफाइंड इंडस्ट्रीज जो अच्छी जो इनिशियल इंडस्ट्रीज गुड़िक स्टार्ट होती स्टार्टअप गुड़िक स्टार्ट हो वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट ओके सो वी हैव टू हैव नेगोशिएट as far as national interest you are keeping in mind the national interest of India तेणु ये जिनस को तो मन रखी कौन सी जगह आम कॉम्प्रोमाइज तो करवा ना ओके
जमती यूएस लगातार आमको कहे डेरी सेक्टर को ओपन कर फॉर यूएस प्रोडक्ट आम से दुईटा जिन देखा एक तो वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ डेरी सेक्टर द सेकेंड थिंग इज एक तो आम डेरी सेक्टर इज लेबर इंटेंसिव थर्ड हूँ रिलीजियस आस्पेक्ट भी अच्छे आप जो आम डिस्कस करते मन थी गोटे हूँ आमर जो मिल्क आम यूज करुचे दैट इज नोन एज द वेजिटेरियन ओके आम ताकू टेम्पल मंदिर भगवान पूजा करने यूज करुचु बट द मिल्क व्हिच यूएस वांट्स टू एक्सपोर्ट टू इंडिया दैट इज नॉन वेज मिल्क ऑल्सो कहीं से मैंने एनिमल फैट हो बोन हो इसबू जिनस भी से मिल्क प्रोड्यूस करूँ प्रोसेसिंग करी तो से जगह दैट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन वेज सो सी आमर रिलीजियस ग्राउंड रे भी कॉन्ट्राडिक्ट करुँची कल्चरल आस्पेक्ट भी कॉन्ट्राडिक्ट करुँची वी कैन नॉट यूज दोज मिल्क व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन यूएस तो आम कॉम्प्रोमाइज तो करवा ना दिस इज व्हाट you should keep in your mind. So on the other hand, India has opened up 90% of its tariff lines for duty-free import from UK. It has kept key agricultural products such as dairy product, apple, oats, edible oils out of the deal. Key demands of the UK. तेणु ये जो इंडस्ट्री ये जो सेक्टर गुड़िक अच्छे डेरी सेक्टर एप्पल ओट्स एडिबल ऑयल ताको आम फ्री ट्रेडर रखी ना हूँ. Similarly, while India has committed to reducing duties on automobile imports by a substantial 100% points over time. So आम ऑटोमोबाइल इम्पोर्ट्स को 100% से टैरिफ फ्री करूँ कारण ठीक अच्छे ऑटोमोबाइल रे आम जो आम मास कंसर्न अच्छे ना से जगह आम कौट ना कौटी कंप्रोमाइज करूँ ना ये जिनस को मन रखिए. Moving to the next, judicial misconduct and accountability. Government silent and reforms to address judicial misconduct. यार सिंपल माने हूँ कौन जुडिशियल मिसकंडक्ट एंड अकाउंटेबिलिटी उपर कहीं लगातार भाव में चर्चा आसूची. नंबर वन जुडिशियरी अपॉइंटमेंट को लेकिन प्रमोशन को लेकिन पोस्टिंग को लेकिन जोटा कॉलेजियम सिस्टम जोटा एग्जिस्ट करुँची ओके या पूर्व 2014 गोटे NJAC आसाला आप जानते नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन व्हिच वाज रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट साइटिंग द जुडिशियल इंडिपेंडेंस. तेणु ये गोटे फैक्टर. सेकेंड फैक्टर द जस्टिस बर्मा केस वी हैव सीन आपनकर मने थी आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम सम यादव करके जे आई थिंक इलाहाबाद हाईकोर्ट रो जज थे सी गोटे पब्लिक फोरम रे ही गोटे स्पीच दौले जोटा कि हेटेड स्प्रेड करूला एगेन्स्ट भी इम्पिचमेंट मोशन या रिमूवल मोशन आनिबार थिला बट दैट इज इन अंडर कंसिडरेशन ए पर्यंत किसी है ना. सो ये टाइप रो या आप सिंपली देखिए कि जस्ट जज कौन करूँ रिजाइन करूँ एंड दे आर कंटेस्टिंग इलेक्शन ओके जज रिटायर करूँ इमिडिएटली दे हैव गिवन द व्हाट यू कॉल कि को स्टेट गवर्नर ही जाऊँ NHRC रो हेड ही जाऊँ तो जोटा कि लुक्रेटिव पोस्ट गुड़िक अलर्ट करा जस्ट आफ्टर द रिटायरमेंट कारण if you see the constitution is silent about any such what you call the जोटा गोटे गैप दरकार या कूलिंग अफ पीरियड जो दरकार कि रिटायरमेंट रो एतिकी वर्ष पर्यंत कौन पब्लिक लाइफ रे से मैंने एंगेज हो पारे ना ओके. तेणु जदि से कूलिंग अफ पीरियड साइलेंट अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं तार फायदा उठाऊँ कि गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट नॉट नेसेसरली द प्रेजेंट गवर्नमेंट जदि आप फ्रॉम द इंडिपेंडेंस देखिए जेकोसी गवर्नमेंट अच्छी जेकोसी पॉलिटिकल पार्टीज इन गवर्नमेंट दे आर ऑफरिंग लुक्रेटिव पोस्टिंग जस्ट आफ्टर द रिटायरमेंट ता माने जन को लुक्रेटिव पोस्टिंग मिलूँ माने एंड एवरी डील इज व्हाट वी कॉल द क्विड प्रो क्यू. जज किसी फेवर करिथिबो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देन ओनली ही हैज बीन ऑफर्ड दिस काइंड ऑफ पोस्ट जस्ट आफ्टर द रिटायरमेंट. ये जिनस को यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्विड प्रो सिचुएशन भी गोटे टाइप रो कौन ना जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को ही कौन करुँची आमर ये शेखर यादव तंगना जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ऊपर ही क्वेश्चन रेज करुँची. एनीवे लेट्स सी कंप्लेन्स अगेंस्ट जजेस आर हैंडल्ड बाय द सिक्रेटिव इन हाउस प्रोसीजर. जस्टिस बर्मा केस रे कौन है फर्स्ट से इन हाउस ताको प्रोसेस कले इन हाउस इनक्वारी कले ओवरसीन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट CJI और चीफ जस्टिस आम कहीपर दिस प्रोसीजर्स आर नॉट स्टैच्यूटरी. तेणु जो इन हाउस हूँ कौन लॉ बैकिंग ना लीगल क्लारिटी किसी ना
ऑफर नो ट्रांसपेरेन्सी कारण से इंटरनल इनक्वारी करेंगे तो ताको ट्रांसपेरेन्सी भी नहीं सी तांकर सबमिट रिपोर्ट सबमिट करदेला एंड दैट्स इट इनक्वारी रिपोर्ट्स आर रेयरली मेड पब्लिक do not allow immediate suspension or criminal prosecution even in serious misconduct cases sexual harassment case रे भी अछंती corruption cases रे भी अछंती there are multiple such cases against the judges अपन को जेमती शेखर यादव का नारे हेड स्पीच रे केस अछि and there is no action has been taken impeachment theoretical check under judges inquiry act 1968 impeachment requires a motion with support from 100 Lok Sabha, 50 Rajya Sabha. Only one judge faced removal proceeding and none were successfully impeached. Removal proceeding Justice Ramaswamy 1993 again say impeach ही ना आंदी process तो start हितला proceeding start हितला but in between that the motion was withdrawn. तो सिमिलर जमती जस्टिस वर्मा का केस रहो जस्टिस वर्मा का केस रे भी मतलब लगुनि कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट हम एंड ही विल बी रिमूव्ड सम और अदर वे कोटी ना कोटी आप देखिए राज्यसभा विड्रॉ हो पारे मोशन और जो लेटर पार्ट जो इनक्वारी कमिटी फॉर्म हम सी एलिगेशन को मना कर दे पारती ना ये किसी सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं और जस्टिस वर्मा बिफोर दैट माइट बी रिजाइनिंग तांको कहुव भाई आप रिजाइन कर दिंतु यू विल बी ऑफर ए गुड पोस्ट रेजिग्नेशन पर ओके तो ये जिनस हो पारे लेट्स सी तो द प्रोसेस इज ऑफन सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल बार्गेनिंग मेकिंग इट एन इफेक्टिव डेटरेंट पॉलिटिकल बार्गेनिंग माने होची जंती मु आपन कहली क्विड प्रो क्यो हिसाब रे होची एवं जुडिशियरी को लेजिस्लेटिव केबे भी इंटरफेयर करबा को चाहुनी जोटा कि हमरा सेपरेशन ऑफ लॉ वाला जो जिनस अछि एंड किंतु कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे ना एनजेएस को एमाने नल एंड भॉइड कर रीजन कौन थिला एमान कहवा कथा होची बेसिक स्ट्रक्चर होची कौन ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी तबे एनजेएसी कहीं एनजेएसी रे आपण एग्जीक्यूटिव रो इंटरफेरेंस भी रखी ओके lack of executive or legislative initiative despite widespread criticism expert calls for reform including by the International Commission of Jurists. The Indian government has not initiated any legislative or institutional changes to revamp judicial accountability. There is no such process to revamp the judicial accountability. Recent Reuters coverage and civil society commentaries underscore the policy void. यानी कि सिविल सोसाइटी हो या रॉयटर्स तरफ गोटे जो आसी आमर रिपोर्ट से कहुई इंडियन जुडिशियरी रेस्पेक्ट रे कि पॉलिसी कौन सी प्रकार ना जोटा कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को एनश्योर कर नाइदर ए स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर ए मेकानिज्म अकिन टू पुलिस ओवरसाइट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर द जजेस तेणु जजेस को पाई या जजेस कर अकाउंट जमती आम विजिलेंस कमिशन अच्छी या विजिलेंस डिपार्टमेंट अच्छी या सबू डिपार्टमेंट गोटे गोटे विजिलेंस सेल अच्छी कौन पाई करप्शन को चेक करने आरटीई अच्छी बट एटी नथिंग इज देयर बैरियर देखो द एग्जीक्यूटिव हेजिटेट्स टू लेजिस्लेट रिफॉर्म्स दैट मे एनक्रोच जुडिशियल इंडिपेंडेंस दिस इज व्हाट वी कॉल द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लेजिस्लेचर डज नॉट वांट टू इंटरवीन The legislature lacks consensus to pass structural changes such as NJAC type frameworks. Okay? कारण लेजिस्लेचर रे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अच्छे आप देखिए धनकर ऑल्सो जो वाइस प्रेसिडेंट आमर थे धनकर ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट जुडिशियल फैटर्निटी ही वॉज ए लॉयर एक्चुअली सो ही ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग दिस वाई NJAC हैज़ बिन स्क्रैप्ड we need a judicial accountability policy a scheme so consistently he was demanding but there are people जो माने कि ताको सपोर्ट करू ना तेणु among the legislature also there is no anonymity कारण सेठी जदि anonymity रहिबो नाही या यूनिटी रहिबो नाही as far as judicial accountability is concerned तो obviously कोनोसी भी specific policy आसी परिबो नाही recommended reforms establish a statutory oversight body National Judicial Commission to handle complaints independently. Okay? तेणु गोटे स्टैच्यूटरी बॉडी भी आम फॉर्म करें जी कि नेशनल जुडिशियल कमिशन जमी आम कह जो कमिशन टी कंप्लेन को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर इम्प्लीमेंट ए कोड ऑफ जुडिशियल कंडक्ट एंड एनफोर्स टाइम बाउंड ट्रांसपेरेंट इंक्वारी प्रोसीजर कोड ऑफ जुडिशियल कंडक्ट जमी आप देखिए सिविल सर्विस सर्वेंट्स मान कोड गुड़िक रोचे कोड ऑफ कंडक्ट जोटा रोचे से जजेस मान भी दरकार टाइम बाउंड एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वारी ओके
मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ जज एसेट पब्लिकली एक्सेसिबल विथ पेनल्टीज फॉर वाउलेशन मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ जजेस एसेट जमती आप देखिए वेबसाइट आम कौन हो जजेस मनकर एसेट को डिस्क्लोज करुचे पब्लिकली एक्सेसिबल रोचे रिमूव कंटेंट ऑफ कोर्ट पावर्स दैट अलाउ इंटरनल साइलेंसिंग ऑफ क्रिटिक्स कंटेंट ऑफ कोर्ट माने कौन कंटेंट ऑफ कोर्ट माने कि जदि आप कोर्ट विषय किसी क्रिटिसाइज कले जमती आप देखिए दृष्टि आईएस जी फाउंडर दिव्य कीर्ति सी जज को ना गोटे कौन कही या सेमती किसी गोटे कमेंट करते तो सडनली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आसाला कोर्टू ना राजस्थान हाईकोर्ट तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन करुच्ची एनी सच क्रिटिसिज्म को साइलेंट करुचे तो दिस इज व्हाट कि इम्यूनिटी से कंप्लीट एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिल जाऊँ. नेक्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल गोटे आसूची प्रोटेक्टिंग वुमेन एथलीट्स mandatory women representation. Every executive committee of a national sports federation must include at least 4 women members, institutionalizing gender equity in decision making. तेणु गोटे जो बिल नुआ अणा जाऊँगी से बिल रे स्पेसिफिकली कौन करा जीवो ना वुमेन कर रिप्रेजेंटेशन रहिबो जो आपनकर स्पोर्ट्स फेडरेशन अछि से स्पोर्ट एंड एथलीट प्रोटेक्शन पॉलिसीज फेडरेशंस must establish safe sport protocols including grievance redressal system aligned with the post act जोटा कि prevention of sexual harassment जोटा हमर अछि से एक्ट अनुसार गोटे सेफ स्पोर्ट्स प्रोटोकॉल आने ये कहीं आसूची आपन जानिथिबे किछि वर्ष यानी कि एटलिस्ट गोटे 1.5 वर्ष पूर्व जो लगातार भाव में आपनकर जो एथलीट माने थिले रेसलर खास करके वुमेन रेसलर फ्रॉम हरियाणा दे वर डिमांडिंग जो तांकर रेसलिंग रो हेड जे थिले ब्रिजभूषण जे एमपी फॉर्मर एमपी तांको नारे सेक्सुअल हारासमेंट रो केस आसेतला थ्रू सी जिनस को आखिया कर रखी दिस फॉर्मलाइजेस मैकेनिज्म टू एड्रेस हारासमेंट एंड अब्यूज बेनिफिटिंग द वुमेन एथलीट्स. Unified ethics and dispute framework, the introduction of a unified code of ethics along with the national sports tribunal. Unified code of ethics गोटे फॉर्म करा जीवो यानी कि फॉर्मुलेट करा जीवो नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल भी फॉर्म करा जीवो कहीं ना जदि किसी जेंडर सेंसिटिव कंप्लेंट्स आसे अलिगेशन आसे किसी डिस्प्यूट रिलेटेड जिनस आसे सो दैट फास्टर एंड फेयर रिजोल्यूशन जमती वुमेन मान को दिया जाई परिबो. Transparency, accountability, national sports federations, including the autonomous BCCI, now subject to RTA Act. सेमान को RTA मध्य रखा जीवो कहा को BCCI जमते देखिए बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया दे आर नॉट अंडर RTA. Scrutiny over policies, financial decision, and athlete welfare measures. This public visibility indirectly reinforces better protection of women players. Okay. सेमती देखो athlete representation governance. Each NSF must include 2 sportsperson outstanding merit on its decision-making team. This ensures women champions have a platform to influence policies and raise concern. तो women मानकर यदि equal representation रहिबो तो they can keep their voice of opinion. ओके सेमाने निजर ओपिनियन रखी पारिबे सेमाने निजर वॉइस भी रखी पारिबे तो से पई सेमान को रिप्रेजेंटेशन भी दवा दरकार. इम्पोर्टेंस कौन देखा शिफ्ट्स फ्रॉम नॉन बाइंडिंग कोर्स टू लीगली इनफोर्सेबल कारण 2011 रो स्पोर्ट्स कोड तो थिला बट दैट इज नॉन बाइंडिंग नो वन केयर्स अबाउट इट तो बर्तमान गोटे लीगल सपोर्ट जैसे तो बिल आसूची एक्ट अनुसार आसो दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय द लॉ. एम्बेड्स जेंडर पैरिटी एंड सेफ एक्सेस राइट्स. ओके स्पोर्ट्स रे जेंडर पैरिटी रहिबो इक्वालिटी रहिबो इक्वल अपॉर्चुनिटी रहिबो एवं सेफ एक्सेस राइट्स भी रहिबो. Empowers women athletes to participate in the policy formulation and governance. Women's athletes' participation is also promoting, aligns India's sports administration with global best practices and gender equity mandates. Okay. Odisha news देखिबा 28% kids stunted, 12% underweight in Odisha. High stunting prevalence around 28% of children under 5 in Odisha are stunted, highly chronic undernutrition and poor maternal and child health. Okay, तो 28% जे आपनकर अछंती चिल्ड्रन अंडर 5 कैटेगरी रे सेमाने होचंती हाईली स्टंटिंग. आपन जानिथिबे जो
हंगर जो आपणकर अच्छी हंगर इंडेक्स कौन आमको देखाए ना हंगर इंडेक्स देखाए स्टंटिंग वेस्टिंग तो स्टंटिंग हूँ यानी कि एज पर तो एज जदि आप देखिए हाइट ग्रोथ न करवा 28% अंडरवेट कंसर्न भी अच्छा 12% ऑफ चिल्ड्रेन इन सेम एज ग्रुप आर अंडरवेट हेल्थ डेवलपमेंट रिस्क 3 दीज इंडिकेटेड सिग्नल्स रिस्क ऑफ फिजिकल ग्रोथ ब्रेन डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी ये सब भी काफ़ी पचर आम रोचे यार रिजन कौन मे बी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आम इनश्योर करूना न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आम इनश्योर करूना अंडर दिस ICDS व्हाट इज कॉल्ड द अंगनवाड़ी सर्विसेज मिड डे मील एंड पोषण अभियान जोटा आम कहे 2.0 माध्यम ओके पोषण 2.0 माध्यम सो वी नीड टू इंटरवीन वी नीड टू इनश्योर डिजिटल मॉनिटरिंग टूल देखा पोषण ट्रैकर इज एन ICT बेस्ड एप्लिकेशन यूज टू ट्रैक सर्विस डिलीवरी अंगनवाड़ी सर्विसेस इन रियल टाइम राइट आम को मॉनिटर करने को पड़ो सो हेल्थ खास करके प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर चिल्ड्रेन अंडर 6 years एमान को भी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इनश्योर करने को पड़ो एफिशिएंसी आमको इनश्योर करने को पड़ो डिजिटाइजिंग अंगनवाड़ी लेवल डेटा improves transparency service targeting etc supports policy decision the data from Poshan tracker helps gaps inform evidence based nutrition intervention okay Mahima Gosai देखिए Mahima Gosai appeared as a mystic in Puri in 1826 known as the Dhulia Gosai for sleeping on bare earth and later called the Nirahari Baba. Mahima cult, as we know, Mahima cult bhi achi. So Mahima Gosai spent 2 decades in deep meditation of Kapila cells of Dhenkanal for surviving in fruits for 12 years and milk in another 12. So Mahima Dharma or Satya Mahima Dharma emphasizes formless, यानी कि निराकार जोटा में कहूँ and then the Nirguna Alekh and rejects idol worship. Okay. एंड कास्ट हायरार्की यानी कि अलेख जो महिमा या अलेख जो कल्ट अच्छे ना दैट इज पार्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट कौन करूला कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करूला एंड कास्ट हायरार्की को भी रिजेक्ट करूला जदि आपनकर मन थी ओके लोअर कास्ट कम्युनिटीज ट्राइबल मन को एसोसिएट करूला एवं मूवमेंट रे पार्ट करथिला इगालिटेरियन सोसाइटी को एस्टाब्लिश करूथिला एंड क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी केमती फॉर्म करा जाई परिबो गॉड फॉर्मलेस गॉड या निराकार इथि पे कहउतले कारण जदि आकार रहिबो तेबे जे कि ब्राह्मण्स मनकर डोमिनेंसी भी रहिबो ओके महिमा गोसाई फर्स्ट डिसाइपल गोविंद बाबा एंड हिज सेकंड डिसाइपल भीमो भोई played pivotal role in spreading this philosophy of mystical poetry and social reform. 1881, Mahima followed reportedly attempt to challenge the Jagannath temple authority in Puri, reflecting the iconoclastic critic of caste and idol worship. कारण idol worship को एमाने strongly criticize करूଥିଲେ ता reason थिला ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को ही criticize करा जाउଥିଲା मोटा मोटी भाव रे देखिबा को ओके तो एमाने कास्टलेस फॉर्मलेस कहते कास्टलेस क्लासलेस सोसाइटी मैंने एस्टाब्लिश करूँ ओके एमसीक्यूज गुड़ी को देखो पोषण ट्रैकर आंसर करूँ यार पोषण ट्रैकर आंसर यार कौन हम फर्स्ट देखो स्टंटिंग रेफर्स टू लो वेट
for age and indicator of acute malnutrition. The Potion tracker monitors real-time delivery of nutrition. In FHS 5, Odisha has uniformly improved in all child malnutrition indicator. नहीं आपण देखु जदि आप देखिए स्टंटिंग माने कौन हाइट मु कहूली हाइट एज सहित बढ़ू ना एंड पोषण ट्राकर एनश्योर्स आपन कहींपारे किसी प्रॉब्लम नहीं. थर्ड हूँ आपंकर NFHS 5 सो मिक्सड ट्रेंड्स इन ओडिशा कारण वेस्टिंग ठीक थाई पारे बट ये स्टंटिंग आम देखुचे तो से हिसाब से ये आंसर होकर 2 हम आंसर 2 ये मन रखिए 2 हम आंसर नॉट 5. ओके ए हेनी 2 हम बी 2 ओनली. ओके बी नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हूँ आपंकर महिमा गोसाई महिमा धर्म. महिमा गोसाई subsisted solely on water for 12 years. Mahima Dharma explicitly rejects caste hierarchy. His disciple Bhimo Bhui composed devotional works to propagate principle of Mahima Dharma. Obviously answer is C 1, 2 and 3. Okay done fine. तो ये हूँ आपंकर मेन्स क्वेश्चन मुझे आपको PDF रे ऐड करके देदेवी डोंट वरी. एंड आरंभ 6.0 जो मैंने जॉइन करने को चाहूँ 31 जुलाई हूँ तार एडमिशन क्लोजिंग लास्ट डेट जॉइन करेंगे. एंड PDF आपन को टेलीग्राम रे मिल जिवो कौन सी क्वेरी जदि थी टेलीग्राम रे मते आपन मेसेज करें. ओके थैंक यू वेरी मच. विल मीट सून. थैंक यू.